Hello friends, this is lecture number 26 and we are learning bill of exchange. Today's problem is Kiran sold goods of rupees 14,000 to Magan. Magan paid rupees 6,000 in cash and accepted a bill for the balance for 3 months. Kiran sent this bill to the bank for collection. On the due date, bill was dishonored. Magan paid rupees 2,000 as a part payment and accepted a fresh bill for the balance due together with interest of rupees 200 on the remaining amount. Kiran endorsed this bill to Jagan. On the due date, the bill is honored. Give journal entries in the books of Magan. So here, Kiran is a seller and Magan is a buyer. Kiran sold goods worth rupees 14,000 to Magan. किरण सेलर आहे, त्यांनी 14,000चा माल मगनला उधारी असं विकला आहे. त्यापैकी 600 रुपये त्यांनी दिलेले पण उधारी नाही, म्हणजे 14,000चा माल विकला त्यापैकी 6,000 त्यांनी कॅशमध्ये दिले. त्याचा तो उरलेले 8,000 कॅशमध्ये नाही दिले. सो इट्स अ पार्शियल क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन अँड पार्शियल कॅश ट्रान्झॅक्शन. मगन पेड 6,000 कॅश, तो ये कॅश ट्रान्झॅक्शन हो गया. बाकी 8,000 उधार बाकी है क्रेडिट ट्रांजेक्शन. सो टोटल माल 14,000 का बेचा. तो किरण सोल्ड गुड्स ऑफ 40,000 टू मगन. इन द बुक्स ऑफ मगन यू हैव टू पास एंट्री. मगन इज बायर, किरण इज सेलर. किरण विल ड्रॉ द बिल. सो दिस पार्ट इज कॉल्ड ड्रॉवर एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड ड्रॉविंग. मगन ॲक्सेप्ट द बिल. पण त्याप्रमाणे आता एंट्रीमध्ये 1 बाय 1 त्याला नीट बघा. फर्स्ट ट्रान्झॅक्शन सेल ऑफ गुड्स. ह्याच्यानंतर विचार करा. वी हॅव टू पास एंट्री द बुक्स ऑफ मगन. सो ॲट द टॉप हियर यू राईट इन द जर्नल ऑफ मगन. मिस्टर मगन. Magan is drawing. So within bracket you write the word drawing. From the Magan's point of view, you have to consider all the transactions and give proper effect to the proper accounts with correct debit and credit. So here, goods worth rupees 14,000 purchased by Magan. Magan will say that he purchased. So purchase account पे effect जाएगा. One account affected is purchase account 14,000. Out of that 6,000 cash is paid. So कैश अकाउंट को इफेक्ट जाएगा 6,000 का. एंड रिमेनिंग 8,000 इज परचेज बट कैश इज नॉट पेड. दैट मीन्स इट इज परचेज ऑन क्रेडिट. सो पर्सनल अकाउंट को इफेक्ट जाएगा किरण's अकाउंट. सो इन दिस ट्रांजैक्शन देयर आर टोटल 3 अकाउंट्स इन्वॉल्व. इसमें ये है नॉमिनल अकाउंट, ये रियल अकाउंट एंड दिस इज पर्सनल अकाउंट. सो नॉमिनल अकाउंट का रूल आपको मालूम है, डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. परचेज इज एन एक्सपेंस, उसको डेबिट करने का. परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है. Purchase account debited by 40,000. Cash account is a real account, you know, and as per the rule of real account, debit what comes in, credit what goes out. मगन की नज़र से देखो कैश goes out, तो क्रेडिट करना पड़ा है. क्रेडिट what goes out. कैश अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड. 8,000 दिया नहीं इसको, तो किरण अकाउंट पे पड़ जाएगा. किरण इज अ पर्सनल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट का रूल आपको मालूम है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. सो हियर किरण इज व्हाट, 8,000 का अमाउंट उसने दिया, ही इज गिवर. पैसा लिया नहीं, ही इज नॉट रिसीवर ऑफ कैश, ही इज ओनली गिवर ऑफ गुड्स. गिवर बोलेगा तो क्रेडिट, क्रेडिट द गिवर. सो देर आर 2 क्रेडिट्स एंड 1 डेबिट. टोटल ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट मस्ट बी इक्वल इन एवरी एंट्री. तो ये 14,000 और ये दोनों का टोटल 14,000. करेक्ट. सो परचेस अकाउंट डेबिट, $14,000. So this is what we learning double entry bookkeeping system. Total debits equals with the total credits. To cash account 6,000. To Kiran's account 8,000. Being goods purchase
on cash and credit basis. Partly on cash and partly on credit basis. So this is how you write as clearly. This is the first transaction of which we found the entry. Now what happened next? जो उधार भी मान लिया 8,000, उसके लिए इसने बिल ड्रॉ किया. So 8,000 का उधारी बाकी है, 6,000 मिल गया. For the balance due 8,000, Kiran draws the bill which Madan accepted. So he accepted the bill for the balance 8,000 for 3 months. So this is the second transaction. Kiran draws the bill of 8,000 on Magan for 3 months. After 3 months, Magan supposed to make payment of this bill. 8,000 3 महीने के बाद. Right now he accepted it. When he accepts the bill, he will call it as bills payable. अब for drawing, this is bills payable. ये एक liability आ रही, इसको क्रेडिट करो. ये liability खत्म हो गया, इसको डेबिट करो. Always remember ड्रॉवर का अकाउंट डेबिट करने का, बिल्स पेबल का अकाउंट क्रेडिट करने का in the books of drawing. Whenever he accepts the bill. So Kiran's account debit. To bills payable account. $8,000. Being acceptance given. Being acceptance given. So this is the second transaction, second entry. Bill drawn by drawer, accepted by drawee in the books of drawee. Always drawer account debit to bills payable. Such entry we have to pass whenever he accepts the bill. अभी ये बिल जो है इसमें एक्सेप्ट करने के बाद इसको भेज दिया एंड किरण के पास वो बिल है. किरण विल कॉल दैट डॉक्यूमेंट एज बिल्स रिसीवेबल. ही विल कॉल इट एज बिल्स रिसीवेबल. It is an asset for him. What he did, इसका उसने क्या किया, तो he sent this bill to the bank for collection. This bill he sent to the bank for collection. Bank for collection account में जमा कर दिया. But this is a transaction between bank and Kiran, so there will be no entry for this transaction in the books of Magan. मगनच्या बुकमध्ये काही एंट्री येणार नाही, त्याचा काही संबंध नाही. हे बिल मी बँकेत कलेक्शनला पाठवलं, बँकेमध्ये आणि किरणमध्ये हा व्यवहार झाला आहे, ट्रान्झॅक्शन झालं आहे. तर त्याची एंट्री किरणच्या बुक्समध्ये असेल, बँकेच्या बुक्समध्ये असेल, मगनच्या बुक्समध्ये एंट्री नाही, त्याचा काही संबंध नाही. आणि आपल्याला मगनच्या बुक्समध्ये एंट्री मारायला सांगितलं, त्यामुळे इथे एंट्री येणार नाही. रिमेंबर, सो दिस इज हाऊ नो एंट्री विल अपीअर इन द बुक्स ऑफ मगन. पुढे काय झालं, ड्यू डेटला ऑन द ड्यू डेट बिल वॉट डिस्काउंट. त्याच्यानंतर ड्यू डेटला बँक प्रेझेंटेड बिल टू मगन अँड मगन डिडंट मेक द पेमेंट. ड्यू डेटला बिल प्रेझेंट केलं, ह्यांनी पैसे नाही दिले, म्हणजे बिल डिसऑनर केलं. बिल डिसऑनर केल्याची एंट्री आता येणार बघा. ही एंट्री उलटी करायची, बाकी काय. रिव्हर्स दिस एंट्री, जी बिल ॲक्सेप्ट करताना एंट्री मारली तीच एंट्री रिव्हर्स करायची ड्रॉवीच्या बुक्समध्ये. सो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी जस्ट रिव्हर्स दिस एंट्री, यू विल गेट द एंट्री ऑफ डिसऑनर. बिल्स पेमेंट डेबिट, किरण क्रेडिट. This liability finishes and this liability increases. That is why such entry appears. The bills payable account debit to Kiran's account 8,000. Being the bill dishonor on due date. तो बिल इज डिसऑनर ऑन ड्यू डेट, उसका एंट्री हमने ड्रॉवी के बुक्स में मारा फ्रॉम द साइड ऑफ ड्रॉवी. व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, या पुढे काय झालं, किरण केम टू मगन अँड उनमें जो एग्रीमेंट हो गया, ही मेक पार्ट पेमेंट 2,000 उसने पे किया. 8,000 पैकी 2,000 त्यांनी पेड केले, उरले 6,000. त्याकरता तो नवीन बिल ॲक्सेप्ट करतोय, त्यामध्ये 200 रुपये व्याज ॲड केलेलं आहे. नीट वाक्य आहे का,
Magan paid rupees 2000 as a part payment and accepted a fresh bill for the balance due. किती बॅलन्स आहे ते 8 पैकी 2 दिले म्हणजे 6000 बॅलन्स आहे. त्या 6000 मध्ये टुगेदर विथ इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 200 200 रुपये व्याज लावलं त्या 6000 वर. ते पण त्या काय केलं 6200 रुपये टोटल त्याच्यावर नवीन बिल ड्रॉ केला 6200. मला आपल्याला पहिली एंट्री मारायला लागेल पार्ट पेमेंट 2000 दिया उसको. He paid rupees 2000 as part payment to Kiran. That entry we have to pass. Part payment. Out of 8000, 2000 paid, balance left 6000. जो 6000 बैलेंस लेफ्ट है उसको रिमेनिंग अमाउंट बैलेंस अमाउंट बोलते हैं. उसके ऊपर 200 रुपये इंटरेस्ट चार्ज किया इसने. किरण चार्ज इंटरेस्ट रुपीज 200. 200 रुपये इंटरेस्ट चार्ज किया जो इमीडिएटली इसने नहीं दिया. तो ये उधार बाकी है 200 रुपये का भी. तो टोटल उधार बाकी कितना 6000 प्लस है 200 रुपया 6200 टोटल उधारी बाकी. आउटस्टैंडिंग अमाउंट इज 6200. फॉर दिस न्यू बिल इज ड्रॉन बाय किरण एंड एक्सेप्टेड बाय मगर. तो नया बिल उसने एक्सेप्ट किया फॉर 2 मंथ 2 महीने के. ओके. तो अभी 3 एंट्री मारना है. पहले एंट्री अभी पास करो पार्ट पेमेंट. वॉच वेरी केयरफुली. Part payment can be very easy. Rupees 2000 cash paid by Mr. Magan to Kiran. That is called part settlement of the bill. Cash of rupees 2000 paid by Magan to Kiran. On the side of Magan, cash goes. Cash account credit. Credit what goes. And Kiran is receiver of cash. Debit the receiver. A personal account, real account. Apply the rule of personal account here and real account rule you have to apply here. And accordingly debit credit you have to decide. So here Kiran's account debit to cash account. Rupees 2000. Being part payment made. Full payment is not made. Being part payment made. So this is how. Watch these 4 entries also carefully in Zoom. Zoom मध्ये बघून घ्या. तिला भर द्या आणि नीट काळजीपूर्वक बघून घ्या. पुढे जाऊ. आता इंटरेस्ट एंट्री मारूया. नाउ वी विल पास एंट्री फॉर इंटरेस्ट चार्ज बाय किरण ऑन मगन विच इज नॉट पेड बाय मगन इमीडिएटली. तो 200 रुपये इंटरेस्ट चार्ज किए किरण ने 200 ऑन मगन. तो मगन जो है उसने पैसा नहीं दिया इमीडिएटली. तो एंट्री कशी है ना हाउ द एंट्री विल अपीयर. इंटरेस्ट अकाउंट और दूसरा अकाउंट किरण अकाउंट. जब पैसा नहीं देते तो उधारी हो गया. उधारी हो गया तो पर्सनल अकाउंट का नाम लिखने का. पैसा दिया तो कैश अकाउंट लिखने. इंटरेस्ट अकाउंट टू कैश अकाउंट और इंटरेस्ट अकाउंट टू मगन. और बघा इंटरेस्ट इज वॉट इट इज एक्सपेंस फॉर मगन. मगन सगळे एक्सपेंस है. सो ही विल डेबिट इट. डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. और किरण को देना पड़ेगा. ये हमारा क्रेडिटर बन गया तो क्रेडिट करो जिसका उधारी उसको क्रेडिट करना है. समझा. तो वी सपोज टू पे टू किरण. ते जर कॅश दिला असता तर कॅश गोज आउट मधलं असतं. कॅश अकाउंट क्रेडिट केलं असतं. लेकिन कैश पेड नहीं किया तो इसका अकाउंट क्रेडिट करना. तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू किरण's अकाउंट रुपीज 200. being interest charge. ये एंट्री भी हो गया. ये एंट्री भी हो गया. अभी टोटल बैलेंस आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है 6000 प्लस 200 6200.
इसके लिए फ्रेश बिल ड्रॉन फॉर 2 मंथ, 2 महीने का बिल ड्रॉ किया 6200 का. दॅट एंट्री नाउ वी हॅव टू पास. ते एंट्री बरोबर क्रमांकाप्रमाणे मारा, व्यवस्थित पुढे मागे नाही झालं तुमचं. इन प्रॉपर ऑर्डर, योग्य क्रमाने वी हॅव टू पास एंट्रीज. So Magan is drawing in his book. We are passing entry now. This third entry we will pass here in this transaction. Kiran draws a bill of 6,200. Second bill इसने draw किया for 2 months. मगन ने accept किया. He will call it as bills payable. बराबर? आता पाठ झालं पाहिजे. Drawer account debit to bills payable account. अशी entry मारायची. Whenever he accept the bill. Drawer account debit. बिल्स पेबल अकाउंट क्रेडिट. ए लाइबिलिटी बढ़ गया, ए लाइबिलिटी कम हो गया इसलिए. तो किरण अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट. 6,200 being fresh acceptance given. ओके. सो दिस इज अवर न्यू बिल इज एक्सेप्टेड बाय मगन. इसका एंट्री मगन के बुक में आ गया. तो दिस इज जैसा ट्रांजेक्शन होगा वैसा यू हैव टू पास एंट्री इन प्रॉपर सिक्वेंस. ठीक है. पुढे काय झालं, व्हॉट हॅपन आहे, ही स्टोरी है दो का, किरण और मगन. वन ड्रॉवर वन ड्रॉवी. अब ये जो बिल है इसके पास है. व्हेन ड्रॉवी एक्सेप्ट द बिल ही रिटर्न इट टू ड्रॉवर. सो ड्रॉवर विल कॉल दैट बिल एज बिल्स रिसीवेबल. यू नो, इसके लिए वो बिल्स रिसीवेबल हो गया. He endorsed this bill to जगन. किरण ने इस बिल को एंडोर्स किया जगन को. अगेन दिस इज द ट्रांजैक्शन बिटवीन किरण एंड जगन. सो नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ मगन. तो मगनच्या बुक्समध्ये काही एंट्री येणार नाही. आता पुढे काय झालं, जगनकडे बिल आहे. ये बिल इसके पास आ गया. इसने ये बिल इसको प्रेजेंट किया 2 महीने के बाद ड्यू डेट को. ऑन द ड्यू डेट इसने पैसा दे दिया. ही ऑनर्ड द बिल. On the due date, the bill is honored by मगन. आता ही जी मात्र एंट्री आहे मगनचा संबंध आहे. किती सोपी एंट्री. जेव्हा जेव्हा पैसे देतो तो कॅश गोज, कॅश अकाउंटला क्रेडिट करा आणि बिल्स पेबलला डेबिट करा. ही लाइबिलिटी संपली. ही मेक्स द पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी. इसके लिए बिल्स पेबल इज लाइबिलिटी. तो उसका पेमेंट किया तो लाइबिलिटी खत्म हो गया. जब लाइबिलिटी खत्म होता है, कम होता है, तो उसको हम डेबिट करते हैं. तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट और कैश गोज आउट, इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट. Such entry will appear. Bills payable account debit to cash account. Correct? 6,200. Being the bill honored on due date. Okay. So this is how this problem is finished as far as general is concerned. Now we will see major posting also. Jara watch this entry 6. Now we will see Kiran's account in the ledger of Magan. मगन के जर्नल में हमने एंट्री मारा. अभी मगन के लेजर में किरण का अकाउंट में ड्रॉवर का अकाउंट ओपन करते हैं. तो फर्स्ट एंट्री इज परचेज ऑफ गुड्स. और डायरेक्ट पोस्टिंग चालू करो. परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू किरण अकाउंट. किरण अकाउंट इज क्रेडिटेड. सो व्हाट इज डेबिटेड? परचेज अकाउंट. नाउ बाय सैलरी ऑफ परचेज. पहला पोस्ट परचेज अकाउंट 8,000. किरण से 40,000 का माल लिया, उसमें से 6,000 का कैश दिया. बैलेंस उधारी कितना? 8,000 का. वो लिख दिया परचेज 8,000 किरण अकाउंट. देन सेकेंड एंट्री है किरण अकाउंट टू बिल्स पेबल. हियर किरण अकाउंट इज डेबिटेड. सो व्हाट इज क्रेडिटेड? बिल्स पेबल. मग टू साइडला बिल्स पेबल. लेजर पोर्शन तुम्ही 11वी वेळेस शिकलाय किती तरी. बस त्यात काही विशेष अवघड नाही. 8,000
Then third entry है bills payable account debit to Kiran account. Kiran account credit और buy side है bills payable. This is the third posting. 8,000. Then Kiran account debit to cash account. तो two side ला cash. 2,000. Then interest account debit to Kiran's account. तो buy side ला interest. $200. पांचवा पोस्टिंग. इसके बाद किरण अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट. तो टू बिल्स पेबल है 6,000 रुपये. 6,000 टू बिल्स पेबल. 6th पोस्टिंग. और लास्ट एंट्री बिल्स पेबल टू कैश. उसमें किरण का नाम ही नहीं तो लिमिट. तर अशा वेळी किरण अकाउंट डेबिट केलं तर क्रेडिट काय केलं आहे बिल्स पेबल त्याला आपण नाही. किरण अकाउंट क्रेडिट केलं तर डेबिट काय केलं आहे ते द्यायचं असतं. बाय साईड ते काय काय म्हणजे बाय असतं. बाय टू इंटरेस्ट अकाउंट अशा वेळी बाय इंटरेस्ट बरोबर टू बिल्स पेबल. लाईक दिस यू डू द पोस्टिंग अँड ॲट द एंड यू डू द टोटलिंग. शेवटी तुम्ही टोटलिंग करा. टोटल दोनों साइड का सेम है. लिखा 7 8 8 16 16,200. 8 8 16,200. तो बैलेंस कैरी डाउन काहीच नाही मिल गया. सो दिस इज हाउ यू हैव टू शो द लेजर अकाउंट. लेजर ऑफ ड्रॉवर अकाउंट. ड्रॉवर्स अकाउंट इज द लेजर ऑफ मगर. तो लेजर में तुम्हारा माहिती देर आर टू साइड्स. लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज क्रेडिट साइड. On both the sides we have 4 identical columns. First column is date, then particular, then JF number, journal folio number, then amount. Same 4 columns are there on the right hand side. Date, particular, JF number, amount. Right hand side is known as credit side, left hand side is known as debit side. You have learned in the A-level standard. तर परीक्षेला जर सांगितलं तरच हे करावं लागतं, नाही सांगितलं तर करू नका. जनरल एंट्री मात्र नक्की आहे. तो अकॉर्डिंगली यू प्रिपेअर युअर सेल्फ. I hope you understand. Bye. See you soon in the next lecture.